Hello students. So I have explained to you about the indeterminate forms. So today we will do some examples on indeterminate forms. So first one is limit x tends to 0 tan inverse x का whole square divided by log of 1 plus x square. So what we see over here is that if you put x is equal to 0 in the numerator, then tan inverse 0 is 0. So that means in the numerator we are getting the value 0. And in the same way in the denominator, if you put x is equal to 0, so log of 1 plus 0 means log 1, so that also comes out to be equal to 0. And that means this is 0 by 0 form. So we have studied in by L'Hospital's rule that if you have 0 by 0 form, then this limit comes out to be equal to limit x tends to 0, and you will differentiate the numerator and denominator separately. So first you will differentiate tan inverse x का whole square. So this will be 2 into tan inverse x into 1 upon 1 plus x square. और नीचे भी हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे. log of 1 plus x square का क्या हो जाएगा 1 upon 1 plus x square into derivative of 1 plus x square is 2x. This will cancel out. Now again, if you put x is equal to 0 in the numerator, you are getting 0, and in the denominator again we are getting 0. So this is again 0 by 0 form. ये 2 भी आपका cancel out हो जाता है. So again you will differentiate. So limit x tends to 0. tan inverse x का डेरिवेटिव हो गया आपके पास 1 upon 1 plus x square, and नीचे आपके पास x है और x का डेरिवेटिव होगा only 1. So now if you take x tends to 0, so here you are getting numerator में 1 upon 1 plus 0 means 1 or denominator 1. So limit comes out to be equal to 1. So this is your first example of indeterminate forms. So this must be clear to you all. Okay. So next example is evaluate limit x tends to b x to the power b minus b to the power x divided by x to the power x minus b to the power b. So in this one, if you put x is equal to b, so न्यूमरेटर में आपके पास क्या आ रहा है b to the power b माइनस b to the power b, क्या हो गया ये 0. इसी तरह से सेम वे नीचे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है. सो यू आर गेटिंग 0 by 0 फॉर्म. सो अगेन L'Hospital's रूल हम अप्लाई करेंगे. न्यूमरेटर को आपने सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना है. सो x to the power b का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, दिस विल बी b इंटू एक्स की पावर b माइनस 1 माइनस b टू दी पावर x का हो गया b टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ b डिवाइडेड बाय x टू दी पावर x का डेरिवेटिव आप अलग से लॉगरिथम लेके निकाल के चेक कर सकते हैं. दिस विल कम्स आउट टू बी x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x. ये मैं आपको भी बता देती हूँ कैसे आएगा. और b टू दी पावर b का तो 0 आएगा ही आपके पास. x to the power x का डेरिवेटिव लेने के लिए सपोज यू पुट y is equal to x to the power x, then you take logarithm on both sides. log y will be x into log x. Differentiate on both sides. So 1 upon y dy by dx will be, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, x into 1 by x plus 1 into log x. तो ये आपके पास आ रहा है 1 प्लस लॉग एक्स, और इस y को हम यहाँ ले जाएंगे दूसरी साइड पर, और y की वैल्यू है आपके पास x टू दी पावर x. सो दैट मीन्स कि हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. ठीक है. तो इस तरह से आपने ये
डेरिवेटिव निकाला x टू दी पावर x का। सो नाउ अब आप इसमें लिमिट पुट करके देखिए x इज इक्वल टू b जब आप पुट करेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आएगा, b इंटू बी टू दी पावर b माइनस 1 माइनस बी टू दी पावर b इंटू में log b। ज़ीरो तो नहीं आ रहा ना, नीचे आ रहा है b टू दी पावर b इंटू 1 प्लस log b। b टू दी पावर b आपका ऊपर से भी कॉमन आ रहा है और नीचे भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे ये ऊपर बचेगा 1 माइनस log b अपॉन 1 प्लस log b, और ये हमारा वैल्यू आ गई इंडिटरमिनेट फॉर्म्स की। सो दिस इज योर सेकेंड एग्जाम्पल। So next one is evaluate limit x tends to a 1 plus sin x minus cos x plus log of 1 minus x divided by x tan square x। हाँ, तो इसमें भी आप पुट करके देखिए, इफ यू पुट x इज इक्वल टू ए, तो सॉरी ये ज़ीरो है, दिस इज नॉट ए, दिस वन इज ज़ीरो, x टेंड्स टू ज़ीरो, ज़ीरो पुट करेंगे। सो 1 प्लस साइन ज़ीरो माइनस कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1, ये 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ आ रहा है आपका log 1 भी ज़ीरो, दैट मीन्स न्यूमरेटर में हमारा आ गया ज़ीरो और डिनोमिनेटर में भी आपका ज़ीरो है। सो वी आर गेटिंग 0 by 0 फॉर्म। और नीचे आपका x tan square x है, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम है, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, दैट लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो, फार्मूला आपका ये है, लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो 10x अपॉन x इज इक्वल टू 1। इसको भी वैसे आप इवेलुएट कर सकते हो एल हॉस्पिटल रूल से, क्योंकि ये 0 by 0 फॉर्म बन रहा है। आप इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी आपके पास। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हो अब लिमिट x टेंड्स टू ज़ीरो 1 प्लस साइन x माइनस कॉस x प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस x, और नीचे आपका सिंपली रह गया x क्यूब, क्योंकि जो आपका 10x अपॉन x का होल स्क्वायर था वो हमारा 1 बन गया। अब इसमें आप x को 0 पुट करें तो आप देख रहे थे न्यूमरेटर में तो 0 आ ही रहा था, डिनोमिनेटर में भी 0 है। सो दिस इज योर 0 by 0 फॉर्म। तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। सो यू विल गेट लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का 0 हो गया, साइन x का डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन x, और इसका हो गया माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x, और नीचे आ गया 3x²। x को 0 पुट करें, अगेन आपके पास 0 by 0 फॉर्म आ रही है, तो फिर से आप इसको अलग अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड सो ऑन, और इस तरह से आप इसको आगे प्रोसीड करते जाएंगे। सो अल्टीमेटली यू कैन सॉल्व इट and you will get this answer as 1 by 2. So complete this question yourself. इसे सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास रिजल्ट ही आ जाएगा -1 by 2। सो सॉल्व कर लेना है एक बार। आप करेंगे यहाँ फिर से 0 by 0 आ रही है, फिर से आपने डिफ्रेंशिएट करना है, ये आएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स
एंड -1/1 - x का लोगे आप डेरिवेटिव तो आएगा -1/1 - x का होल स्क्वायर, और ये इधर 6x, ये फिर से आपका 0/0 आएगा। हमें एक बार और करना पड़ेगा जब आपका ये डिनोमिनेटर में ख़त्म हो जाएगा x, और उसके बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो आई होप यू कैन कंप्लीट दिस योरसेल्फ, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा बेटा। The next question is evaluate limit x tends to infinity a to the power 1/x minus b raised to the power 1/x divided by log of x upon x minus 1। हाँ जी, तो इसमें आपको दिया हुआ x टेंड्स टू इन्फिनिटी। आप इसमें वैल्यू डाल के देखिए, x को जब इन्फिनिटी डालेंगे तो 1/x क्या हो गया 0, और a की पावर 0 हो गया हमारे पास 1। इसी तरह से b की पावर 0 1, सो 1 - 1 क्या आ रहा है 0। और नीचे जो आपके पास है log of x upon x minus 1, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम एक तरह से जब आप इसे डिवाइड करेंगे x - 1 से, सो यू कैन राइट इट एज 1 + 1 upon x minus 1। तो जब x को इन्फिनिटी रखेंगे तो log 1 आएगा, और log 1 की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। दैट मीन्स यू आर हैविंग 0/0 फॉर्म। तो क्योंकि 0/0 फॉर्म है तो आप एल हॉस्पिटल्स रूल लगा सकते हैं, इसका आप डिफ्रेंशिएट करिए। न्यूमरेटर में आपका डेरिवेटिव क्या आएगा, a की पावर 1/x को डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि 0/0 फॉर्म है आपके पास। सो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी a raised to the power 1/x into log a, और 1/x का डेरिवेटिव भी आएगा साथ में, तो -1/x²। जस्ट ए मिनट, फिर से लिखते हैं। सो दिस विल बी a to the power 1/x into log a into -1/x², और इसी तरह से आगे आएगा -b की पावर 1/x into log b into -1/x² डिवाइडेड बाय log of x upon x minus 1 को आपने करना है। तो आप इसको log x minus log x minus 1 करके भी ले सकते हैं डेरिवेटिव। तो ये आ जाएगा 1/x minus 1/x minus 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। ये हमारे पास आ रहा है एक्चुअल में, ऊपर से आपका -1/x² जो है वो कॉमन आ गया है। सो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच रहा है, a की पावर 1/x log a minus b to the power 1/x log b, और नीचे आपका आ रहा है x - 1 minus x, तो क्या आ गया -1/x इंटू में x - 1। ये एक x आपका कैंसिल आउट हो गया है, तो रिमेनिंग हमारा आ गया x/x - 1। ये माइनस साइन भी आपका कैंसिल हो गया। तो इसके बाद आगे क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम। इससे नेक्स्ट स्टेप देखोगे क्या आता है।
तो ये आया हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a to the power 1 by x log a minus b to the power 1 by x log b डिवाइडेड बाय एक यहाँ से आपका ये जो x बचा था और माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया हमारे पास, तो ये आ रहा है आपके पास x अपॉन x माइनस 1। ठीक है, इसको आप नीचे ले जाके लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई एक्स। इस x को नीचे ले जाओ अगर आप। अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी जब आप लेके चलते हो तो ऊपर क्या आ रहा है, लॉग ए माइनस लॉग बी, और नीचे x टेंड्स टू इन्फिनिटी किस में करना है, इसकी जगह पर आप क्या लिख लोगे, इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन x माइनस 1 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाई एक्स। और इसमें जब आप x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 1, एंड दैट मीन्स ये आपका रिजल्ट आ गया, यानी कि log ऑफ a अपॉन b। सो दिस इज योर फोर्थ एग्जाम्पल। Next example is if limit x tends to 0 sin 2x plus a sin x upon x cube, this is finite, then find a and the limit। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है और फिर लिमिट भी निकालनी है साथ में। For this again check the limit, if you put x tends to 0, ऊपर भी आप देख रहे हो 0 है, नीचे भी 0 आ रहा है, so this is your 0 by 0 form। So एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, so this will comes out to be limit x tends to 0 sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x प्लस a cos x अपॉन 3x स्क्वायर। अब इसमें हम x को 0 पुट करें, ऊपर आ रहा है 2, यहाँ कैसे आ रहा है 2 प्लस a अपॉन 0, बट हमें जो ये लिमिट है दिस इज गिवन टू बी फाइनाइट। अब अगर आपका 2 प्लस ए, इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 प्लस ए शुड बी इक्वल टू 0 फॉर लिमिट टू बी फाइनाइट। क्योंकि अगर ये 0 नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तो समथिंग नॉट इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 0 आपके पास इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई 2 प्लस ए इज इक्वल टू 0 एंड विच विल गिव यू ए इज इक्वल टू -2। तो ए की वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब दूसरी बात, क्योंकि 2 प्लस ए 0 है, तो इसका मतलब ये वाली जो फॉर्म है हमारी, दिस इज योर 0 बाई 0 फॉर्म, और 0 बाई 0 फॉर्म है तो हम फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, and so you will again differentiate, so this is limit x tends to 0 minus 4 sin 2x minus a sin x upon 6x, और ये तो हमें दिख ही रहा है, ये 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है x को 0 पुट करने से। so again you will differentiate, limit x tends to 0, this will be -8 cos 2x minus a cos x and divided by 6। अब इसमें x को 0 पुट करो, देखो क्या आता है, x 0 पुट करेंगे तो -8 माइनस a डिवाइडेड बाय 6, और a की वैल्यू तो हम निकाल चुके थे,
ए की वैल्यू थी -2, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे ए की वैल्यू। तो -8 + 2 यानी कि -6 डिवाइडेड बाय 6, तो वैल्यू आपके पास क्या आ गई, -1। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो लिमिट है फंक्शन की वो तो -1 आ रही है, और जो ए की वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी -2। एंड दिस proves your this question, and I think this is all for today। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स होंगे, उनको आप प्रैक्टिस करना और समझ लेना। सो वी विल डू सम मोर एग्जाम्पल्स टुमारो।